Hello students, welcome to class 11 of the postmodern period. So in this class we'll be studying the postmodern period, which was from 200 BCE to 300 CE. And after the decline of modern empire, जो India था, it entered into a phase of regional kingdoms. So we had quite number of regional kingdoms that emerged, and plus there were foreign invasions that took place. So this phase is basically important for your foreign invasions and your regional kingdoms, and this is actually very extremely, I would say, extremely important because it led to rise of regional dynasties. And there was this cultural synthesis between India and Central Asia. There was also spread of Buddhism, and there was growth of trade, development of Gandhara and Mathura art. So regarding the Gandhara and Mathura art, I'll be taking a separate lecture in art and culture where I'll be talking about all these arts. Okay? And also this period was marked by feudal tendencies. So when we start with medieval India, I will tell you in detail about feudalism, and there we will cover it. सो हाँ जी, तो इसमें जो हमारी मेजर डायनेस्टीज ऑफ दिस पीरियड हैं इन नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली. इन नॉर्थ इंडिया वी हैड शुंगास, ऑलराइट, वी हैड कानवाज, and we then had Indo-Greeks. I have mentioned about Indo-Greeks here. And then we had the Shakas. So here we have the Shakas, and then we have Parthians. Alright, or they were also known as Shaka Pehlavas or Parthians. And then in the end we have Kushanas. ठीक है. In the Deccan we have Satavahanas, and this was basically Deccan. So in Deccan, in South India we have Satavahanas, and we also later have Vakatakas. ठीक है, तो let's start with Shungas first. इसमें basically आपको यही याद रखना है कि there was this political history is important because we have to remember certain rulers and what they did, and the inscriptions associated with them, because sometimes UPSC might ask you these questions कि ये वाली inscription है. Obviously major inscriptions we see during the modern period only, and I discussed them in detail, but here also we have some inscriptions that you should just know that it was associated with this person. So here we have the Shunga dynasty, okay, and it was Pushyamitra Shunga who was the founder, and he was the one who killed Brihadrat, who was the last ruler of the Mauryas, and his inscription is basically known as Ayodhya inscription, where he performs Ashwamedh sacrifice. And the drama, we have Malvika Agnimitram, which is written by Kalidas, and it basically shows a conflict between Pushyamitra and Yajasena, who is the king of Vidarbha, Maharashtra. Okay, so he defeated the Bactrian king Demetrius also, and at this time we have Patanjali, who is the one who wrote Mahabhasya and Yog Sutra. So he was a contemporary of Pushyamitra. And then Pushyamitra is also known for killing the Buddhists and destroying stupas, but he also renovated Bharut stupa. So we cannot just say कि yes, he was there and he killed the Buddhists. Yes, he did that, he destroyed the stupas also, but yes, he also renovated Bharut stupa. So यहाँ पे we can actually just point out कि basically the Buddhist text यही कहते हैं, जो आपका पुष्यमित्र शुंगा था, he destroyed Buddhism to certain extent, and he basically promoted your Brahmanism. So he was a believer of Brahmanism and he supported that, but Buddhism also survived. We can't forget that Buddhism also survived. After that we have Agnimitra Shunga. So he was the son of Pushyamitra. ठीक है, he was Pushyamitra's son, and Agnimitra Shunga की एक मालविका अग्निमित्रा है. So he is the protagonist. ठीक है, he is the hero of Kalidas's play Malvika Agnimitram, and this is also obviously associated with Vidisha. ठीक है, विदिशा की क्या था यहाँ पे, there was this love affair of Agnimitra with Malvika of Vidisha. सो दे हैड अ लव अफेयर, एंड जो हमारी कालिदास की मालविका अग्निमित्रम है या मित्रा है, तो ये चीज़ उसी पे डिपेंडेंट है.
ठीक है, मतलब ये चीज़ उसके बारे में बताती है. Then another important ruler we have to remember is about Bhagvat. ठीक है, और you just remember Bhagvat. I think that is more easier for you rather than remembering Bhagbhadra. So he was the one who basically during his time there was Besnagar pillar inscription which was basically erected by Heliodorus. ठीक है, so this Besnagar pillar inscription tells us that there was a strong diplomatic relations between the Greeks and the Shungas, and this is also referred to as Garud inscription, and this talks about the Besnagar pillar inscription talks about Bhagvat, and Heliodorus is also described as worshipper of Lord Krishna, and the pillar was in honor of Lord Krishna. Then the last ruler, Devbhuti, who was who was busy in pleasuring himself, and he was a corrupt ruler, and he was the last ruler, and he was eventually defeated by the Kanvas. However, there is one short note that you have to remember. Baki sab mein to we can see कि they all did Brahmanism, right? So they promoted Brahmanism. बट यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है वासुमित्र शुंगा का, हु एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म एंड ही रिकन्स्ट्रक्टेड स्तूपास दैट वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंगा. सो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि डिड एवरी वन in Shunga dynasty promoted Brahmanism, तो no, there is certain example of Vasumitra Shunga who accepted Buddhism also, and he reconstructed all the stupas that were destroyed during Pushyamitra Shunga. ठीक है, कन्वा डायनेस्टी में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये वासुदेव ने स्टार्ट करी थी, एंड ही इज़ रेफर टू एज सर्वेंट्स ऑफ द शुंगाज, एंड देयर वॉज देन दिस लास्ट रूलर शुशरामन, and he was overthrown by the Satavanas. ठीक है, so he was overthrown by the Satavanas ruler Simukh. So this is the only thing you have to remember. तो हमारा इसमें शुंगा डायनेस्टी में तो वी हैव टू रिमेंबर अबाउट पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा, भगवत एंड देवभूति, एंड ऑल्सो दिस पॉइंट अबाउट द वासुमित्र शुंगा. ठीक है, देन वी हैव टू रिमेंबर हु पतंजलि वॉज एंड इन विच लाइक ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू विच रूलर. Okay, and what did he write? So he wrote महाभस्य and योग सूत्रा. ठीक है, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे टेबल मतलब एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है. सो इन दिस फ्लो चार्ट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हमारा गंगा प्लेन्स में तो जो मगध के साइड्स पे था, तो मगध साइड पे तो वी हैड शुंगाज एंड द कन्वाज. ठीक है, अब ये जो मित्राज थे, ये मैंने यहाँ पे बस ये लिख लिया है कि दिस कन्वाज वर नॉट रिप्लेस्ड बाय मित्राज. तो कन्वास बस मित्रास का आप ये याद रखो, इट वॉज जस्ट अ पैरेलल रीजनल रूलर, दे वर जस्ट पैरेलल रीजनल किंगडम. ओके, सो वी हैड शुंगाज हु वर रिप्लेस्ड बाय द कन्वाज, एंड देन कन्वाज के बाद हमारा कौन आता है? सतवानाज इज़ द वन हु डिफीट कन्वा डायनेस्टी. साउथ वाली डायनेस्टी हमें कन्वाज को यहाँ पे हरा देती है. एंड देन इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सो हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया है इस साइड वाला. ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से अटैक्स जो होते हैं, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर के अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन के लिए बहुत माना जाता था, क्योंकि इंडिया के बाकी सारी साइड से तो वी हैड वाटर, राइट, एंड यहाँ पे हमारे माउंटेनियस एरियाज इतने ज़्यादा थे. एक हमारा ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया था जहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉर द इन्वेडर्स इट वॉज ईजियर टू कम फ्रॉम देयर. ठीक है, तो अब इसमें हमारी कौन कौन सी हैं? वी हैव इंडो बैक्ट्रियंस हु आफ्टर हुम लाइक केम द शाकाज, एंड देन वी हैव द इंडो पार्थियंस, एंड देन वी हैव द कुशानाज. ठीक है, एंड डेक्कन में लाइक आई सेड वी हैव सतवानाज एंड द वाकाटाकाज. सो हियर अब like regarding the Indo-Greeks and the Bactrians, so here let's talk about how after Alexander the Great, who died in 323 BCE, Greeks settled in Bactria. तो जब Alexander the Great, when he passes away, he obviously leaves his members, like his चेला जो होते हैं उनके जो उसके अंडर काम करते हैं, उनको हर जगह वो छोड़ के चला जाता है. एंड इवेंचुअली that Greeks which settled in the Afghanistan region became independent under Diodotus I. Later they entered northwest India and they were called Indo-Greeks. So always remember कि जो हमारे Bactrian Greeks हैं, यही हमारे Indo-Greeks कहलाते हैं only when Indo-Greeks enter India. ठीक है, Bactrians are in Afghanistan, तो ये अफ़गानिस्तान में ही रहते हैं. एंड Bactrians जो आपका इंडिया क्रॉस कर लेते हैं,
उनको हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं. सो आउटसाइड इंडिया दे आर कॉल्ड बैक्ट्रियन ग्रीक्स एंड इनसाइड इंडिया दे कॉल्ड इंडो ग्रीक्स. ठीक है. तो ओरिजिन्स ऑफ बैक्ट्रिया इज़ वेरी सिंपल. फाउंडर आपका डियोडोटस वन था एंड इट वॉज रीजन फ्रॉम दी अफगानिस्तान वाला एरिया. ठीक है. सो दिस स्टेज पे यू शुड रिमेंबर कि दे वर जस्ट कॉल्ड बैक्ट्रियन ग्रीक्स एंड दे वर नॉट येट इन इंडिया. देन फाइनली दे एंटर इन टू इंडिया अराउंड circa 200 and 180 BCE, and the first major ruler to enter India was Demetrius I. So he invaded India in 190 BC and came into conflict with पुष्यमित्र शुंगा. ठीक है. अब डेमेट्रियस वन के तुम्हारे दो कमांडर्स होते हैं, अपोलोडोटस एंड मियांडर. तो जिसमें से हमारा मियांडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मियांडर वॉज ऑल्सो नोन एज मिलिंद और मिलिंदा. ठीक है. एंड हिज कैपिटल वॉज एट सियालकोट एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद महायान बुद्धिज़्म. सो यू कैन सी कि यहाँ पे तो हमारी ब्राह्मणिज्म फॉलो हो रही है. ठीक है. यहाँ पे हमारी महायान बुद्धिज़्म फॉलो हो रही है. तो ही वॉज एसोसिएटेड विद महायान बुद्धिज़्म एंड देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक which was Milind Pano, which talks about the conversations between Milind और Meander with Nagsena. ठीक है. उसके बाद Meander के बाद हमारा ये fragmentation होने लग जाता है. Kingdom splits into many small rulers, you know, Apollodotus and Antialcidas. तो political instability begins here. And the last ruler of Indo-Greeks is Hermes, which is basically the last ruler of this dynasty who was defeated by the Parthians. ठीक है. दिस इवेंचुअली लेड टू द एंड ऑफ द ग्रीक रूल इन बैक्ट्रिया. तो बैक्ट्रिया में तो हमारा ये ख़त्म हो गया. अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे. तो फर्स्ट वन टू इशू कॉइन्स इंडो ग्रीक्स थे. ठीक है. बाइलिंगुअल थे, जिसमें आपका बाइलिंगुअल मतलब ग्रीक और खरोष्टी यूज़ हुई थी. एंड सिम्बल्स इंक्लूड ग्रीक गॉड्स एंड इंडियन रिलीजियस सिम्बल्स. ठीक है. तो आपको ग्रीक गॉड्स भी दिखेंगे, इंडियन रिलीजियस सिम्बल्स भी दिखेंगे. हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर इज़ यूज्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप इज़ देयर. ठीक है. तो उनको मिलिट्री गवर्नर्स होते थे, तो उनको हम स्ट्रैटेगोस कहते थे. एक तुम्हारा सत्राप्स भी था. सत्राप्स के जो सत्राप्स वर्ड यूज़ हुआ है मिलिट्री गवर्नरशिप के लिए, दैट इज़ फॉर शाकाज एंड कुशानाज. स्ट्रैटेगोस है, इट इज़ फॉर इंडो ग्रीक्स. ठीक है. तो फर्स्ट वन टू इशू कॉइन्स, एक चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये भी मेंशन किया है कि फर्स्ट वन टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया इट वाज द इंडो ग्रीक्स. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम इशू किए हैं गोल्ड कॉइन्स वो इंडो ग्रीक्स ने किए हैं. हाउएवर हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड, हमें ये देखना है कि गोल्ड की हाईएस्ट प्योरिटी कब थी. वो इंडो ग्रीक्स के टाइम पे नहीं थी, वो थी कुशानास के टाइम पे. ठीक है. कुशानास के टाइम पे देयर वाज हाईएस्ट प्योरिटी इन गोल्ड कॉइन्स. गुप्तास के टाइम पे देयर वाज हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब गोल्ड कॉइन्स वर मोर इन नंबर. ठीक है. दे वर मोर इन नंबर बट लेस प्योरिटी. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. दे वर गुप्तास के टाइम पे दे वर मोर इन नंबर बट लेस प्योरिटी. कुशानास के टाइम पे हाईएस्ट प्योरिटी वॉज देयर इन द गोल्ड कॉइन्स एंड द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स वर द इंडो ग्रीक्स. नाउ वी विल कम टू शाकास हु वर ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ये 90 BC में आए हैं एंड इनकी ना 5 ब्रांचेस थी. सो 5 ब्रांचेस लाइक अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन एंड गिरनार, आउट ऑफ विच उज्जैन एंड गिरनार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जिसमें मैंने आपको मेन चीज़ तो बात करी है उज्जैन एंड गिरनार की. एंड अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट यू नो मोजेस एंड इजिस. सो मोजेस आपका जो था वो यहाँ पे था तक्षशिला में. वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मोजेस एंड इजिस. तो ही वॉज द फर्स्ट शाका किंग, यू नो, फर्स्ट शाका किंग एट गंधार. एंड उनके बाद इजिस आते हैं एंड इजिस इज़ द वन हु एनेक्स्ड नॉर्थ इंडिया एंड ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद विक्रम संवाट एरा which began in 58 BCE, which is basically used to mark the Aziz accession to throne. ठीक है. earlier victory of उज्जैन king विक्रमादित्य over the शाकास. तो बेसिकली क्या है, हम ये जो विक्रम संवाट एरा है वो हम यूज़ करते हैं बिकॉज एजिस मार्क्ड हिज एक्सेशन टू द थ्रोन. ठीक है. और ये चीज़ हम तब भी बोलते हैं जब उज्जैन किंग विक्रमादित्य ने जीता था ओवर द शाकास. तो अभी इसमें मेन चीज़ तो हमारी तक्षशिला की थी. ठीक है. नाउ मथुरा में एजिलिसिस करके थे. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उज्जैन एंड गिरनार की है. सो कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली उज्जैन एंड गिरनार दे वर रेफर टू एज द वेस्टर्न क्षत्रपास.
ठीक है, अब तुम्हें याद रखना है कि नासिक या गिरनार वाले जो ये थे, ठीक है, गिरनार वाले, इनको हम क्षत्रता डायनेस्टी कहते थे, और जो हमारे उज्जैन वाले थे, जो हमारे उज्जैन वाले हैं, उज्जैन वालों को हम कर्दमक्का डायनेस्टी कहते थे। ठीक है, रिमेंबर जो क्षत्रतास डायनेस्टी थी, ये इनका नासिक गिरनार वॉज द कैपिटल, एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज नहापना। ठीक है, एंड नहापना वॉज द वन हु वॉज डिफीटेड बाय गौतमपुत्र सतकर्णी ऑफ सतवाहनास, and he had continuous conflict with Satavahanas for decade, and there is his inscription at Karle caves of Maharashtra and Nasik. ठीक है, even though I don't think so it's very important for you to learn this thing, इसको आप बस पढ़ के भी चले जाओ तो it is fine. तो yes, we have the Kshatrata dynasty and the Kardamakas dynasty, right? तो इसमें we have नासिक गिरनार, इनकी कैपिटल थी ऑफ Kshatrata dynasty, and the most important ruler was Nahapana. And then Nahapana was eventually defeated by Gautamiputra Satkarni of Satavahanas. ठीक है, he had continuous conflict with Satavahanas for the Deccan area. And अब आते हैं हम कर्दमकास पे। तो कर्दमकास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये उज्जैन में थी, एंड क्षत्रता डायनेस्टी से ज़्यादा लॉन्ग लिव रही है ये। ठीक है, इट हैज़ सर्वाइव्ड मोर दैन क्षत्रता डायनेस्टी। तो इसमें क्या है, वी हैव एग्जाम्पल ऑफ चष्टाना. Chashtana was the founder, and then we have Jayadaman, and then we have Rudradaman. You might have heard about him before also. Rudradaman is like very famous. He was the one who patronized Sanskrit. तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत आई है, विच इज़ बेसिकली जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. ठीक है, बिफोर दिस द इंस्क्रिप्शन वॉज प्योरली इन प्राकृत, मतलब इससे पहले जितनी भी मेजर इंस्क्रिप्शंस थी वो प्राकृत यूज़ करती थी. इसके टाइम पे, रुद्रदमन के टाइम पे, ही पेट्रोनाइज संस्कृत. ठीक है, एंड कौन सी फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है इन संस्कृत, दैट इज़ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, एंड ही इज़ द वन हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली आई टोल्ड यू ही इंस्क्राइब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. तो इसके इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि रुद्रदमन डिफीटेड गौतमीपुत्र सतकर्णी ऑफ सतवानास. ठीक है, ऑफ सतवानास ट्वाइस. तो वी कैन रिमेंबर कि सतवानास का जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, यहाँ पे इसने नहापना को तो डिफीट कर दिया, इसने क्षत्रता डायनेस्टी को तो एकदम ख़त्म कर दिया. लेकिन जो सतवानास का गौतमीपुत्र सतकर्णी था, ही कुड नॉट डू द सेम फॉर रुद्रदमन. ठीक है, ही कुड नॉट डू द सेम फॉर रुद्रदमन. ही इंस्क्राइब्ड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. तो रुद्रदमन डिफीटेड गौतमीपुत्र सतकर्णी ट्वाइस, एंड रुद्रदमन्स डॉटर मैरिड टू गौतमीपुत्र सतकर्णी सन. तो हम ये बोल सकते हैं कि रुद्रदमन की जो बेटी थी, शी मैरिड टू गौतमीपुत्र सतकर्णी सन. जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा था, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी. ठीक है, पुलुमावी. तो इसने उसकी बेटी से शादी करी थी. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन शाकाज. ठीक है, रुद्रदमन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर because of his Junagadh inscription and because he was the one who basically promoted Sanskrit. ठीक है, फिर पार्थियंस आते हैं और आर शाका पहलवाज. तो इसमें इम्पॉर्टेंट रूलर्स आपके मिथ्रोडेटीज वन. सो इसके टाइम पे इट वाज जस्ट टेरिटोरियल हाइट थी, एंड फॉर्मल ट्रेड विद चाइना वाज देयर. एंड देन वी हैव गोंडोफेरनोस. ठीक है, गोंडोफेरनोस का यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि सेंट थॉमस आए थे इंडिया टू प्रोपिगेट क्रिश्चियनिटी. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वी कैन सी एग्जाम्पल कि ठीक है, हमारा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी शुरू हो चुका था. एंड येस, यू कैन रिमेंबर कि एक हमारी इंस्क्रिप्शन है तख्ते बही करके, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो सेंट थॉमस वॉज द वन हु केम टू इंडिया टू प्रोपिगेट क्रिश्चियनिटी. ठीक है, आफ्टर दिस वी आर डन विद द पार्थियंस एंड द शाकाज एंड मूव ऑन टू द कुशानास. ठीक है, वन ऑफ द लास्ट वंस, एंड आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट द सतवानाज. सो कुशानाज वो बेसिकली फ्रॉम द यूजी ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया. ठीक है, हमारा यहाँ पे फाउंडेशन कौन करता है, कुजला कार्डफिसेस. तो कुजला कार्डफिसेस इज द वन हु डिड फाउंडेशन ऑफ यूनिफाइड कुशाना एम्पायर. ही मिंटेड कॉइन्स इन कॉपर. ठीक है, ही मिंटेड कॉइन्स इन कॉपर, एंड इट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द रोमन कॉइन्स, एंड कॉइन्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म. तो फर्स्ट वन टू यूज़ इम्पीरियल टाइटल्स एज कुशाना वॉज धर्मठीडा. मतलब ही बेसिकली used the title धर्मठीडा. ठीक है, तो कुजला कार्डफिसेस की यू जस्ट रिमेंबर दैट ही वॉज द वन हु जस्ट minted the coins in copper. ठीक है,
हमारे गोल्ड कॉइन्स भी इस टाइम पे चल रहे होते हैं, बट ही इज़ द वन हु मिंटेड कॉइन्स इन कॉपर, ठीक है. एंड ही इज़ द फर्स्ट वन टू यूज़ द इम्पीरियल टाइटल्स एज अ कुशाना. ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ द इम्पीरियल टाइटल धर्माटीडा, ठीक है. वीमा कार्डफिसिस, तो इसमें ये एग्जाम्पल है कि एक को रूलिंग का एग्जाम्पल है. लाइक सन ऑफ कुजुला कार्डफिसिस स्टार्टेड को रूलिंग विद हिज फादर, ठीक है. तो सन ऑफ कुजुला कार्डफिसिस स्टार्टेड को रूलिंग विद हिज फादर. तो ही इज़ द सन ऑफ कुजुला कार्डफिसिस एंड ही इज़ द वन. वीमा कार्डफिसिस इज़ द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड को रूलिंग, मतलब बाप और बेटा साथ में मिलकर रूल करते थे, ठीक है. ये एक नई चीज़ है जो कि आपको जनरली नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चे किसी अपने बाप को मार रहे हैं, उसके बाद जाके वो बन रहे हैं. तो यू नो ये वाला चीज़ ज़्यादा कॉमन था. एंड देन वी हैव हाँ, वीमा कार्डफिसिस की वी वर टॉकिंग अबाउट हिम. तो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स आर फाउंड हियर, ठीक है. एंड इज़ द फर्स्ट कुशाना रूलर टू डू सो. देखो हमारे फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन्स आते हैं वो आते हैं आपके इंडो ग्रीक्स के टाइम पे, ठीक है. वो इंडो ग्रीक्स करते हैं. कुशानाज में क्या है कि जो फर्स्ट टाइम गोल्ड इशू करता है, ठीक है, वो है वीमा कार्डफिसिस. तो कॉपर कॉइन कौन इशू करता है? कॉपर कॉइन्स हमारे इशू हो रहे हैं यहाँ पे कुजुला कार्डफिसिस से. तो ये जो कुशानास का जो फाउंडेशन जिन्होंने रखी है, ही इज़ द वन हु मिंटेड द कॉइन्स इन कॉपर एंड वीमा कार्डफिसिस इज़ द वन हु मिंटेड द कॉइन्स इन गोल्ड. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन ड्यूरिंग कुशानास वी हैड बोथ गोल्ड and copper coins. And what have I told you before regarding the Kushanas, कि Kushanas were the ones कि इनके उसमें हाईएस्ट प्योरिटी थी गोल्ड कॉइन्स में, ठीक है. दे हैड द हाईएस्ट प्योरिटी इन गोल्ड कॉइन्स, सो रिमेंबर दैट. देन वी हैव जस्ट वन पॉइंट रिमेनिंग हियर कि ठीक है, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महेश्वरा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कनिष्क के बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स सारे लिखे हैं, ठीक है. एंड यू हैव टू रिमेंबर ईच वन ऑफ देम. आई हैव लिटरली मार्क्ड विथ स्टार्स ऑल्सो योर कि भाई इनको करके ही जाना है आपको, ठीक है. ही वाज सन ऑफ वीमा कार्डफिसिस. तो हमारे पास कुजुला कार्डफिसिस था, देन वी हैव वीमा कार्डफिसिस एंड देन वी हैव कनिष्का, ठीक है. 78 CE से. अब सबसे पहले तो ही वाज अ सन ऑफ वीमा कार्डफिसिस एंड ही एक्सपैंडेड फर्दर ईस्ट इनटू द गंगा वैली, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इसकी है रबताक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान में. ही मैंशंस अबाउट द कनिष्क एंड यू नो बैक्ट्रियन लैंग्वेज. सो बेसिकली कनिष्क के बारे में इस रबताक इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है एंड बैक्ट्रियन लैंग्वेज में मैंशनड है. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज देवपुत्र एंड ही हैड 2 कैपिटल्स, ठीक है. जनरली लोगों की 1 कैपिटल होती है, इनकी 2 कैपिटल्स थी, एक पुरुषपुरा एंड एक मथुरा. पुरुषपुरा का नाम था पेशावर, पर पहले पुरुषपुरा था, ठीक है. तो इट वाज द मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर. ही वाज द वन हु स्टार्टेड द शाका एरा, ठीक है. दिस इज़ द कैलेंडर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ही इज़ द वन हु स्टार्टेड शाका एरा एंड दिस वाज द कैलेंडर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये अभी हम जो यूज़ करते हैं वो कैलेंडर हम कनिष्क का यूज़ करते हैं, हम वो विक्रम संवाट वाला नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ही इज़ द वन हु स्टार्टेड द शाका एरा विच स्टार्ट्स अराउंड 78 CE, ठीक है. एंड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी यहाँ पे होती है अंडर वासुमित्रा. एंड इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वी कैन सी कि बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू 2 schools, हीनयान एंड महायान, ठीक है. एंड ही पेट्रोनाइज्ड द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. And he also controlled the Silk Route in Central Asia. So remember, he was so much in power that he controlled the Silk Route, ठीक है. आज भी जो हमारी सिल्क रूट है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, बट ही वॉज द वन हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट, ठीक है. एट दैट टाइम रिलीजियस टॉलरेंस पूरा था. ही वॉज यू नो believer of both. He had Shiva and he had Buddha also, and he had these Greek deities and Persian gods. So you know religious tolerance एकदम high level पे थी. And at the end unsuccessful military campaign in Central Asia against the Chinese where he was defeated. तो तब उनकी मौत हो जाती है and this is how he was defeated in a military campaign. अच्छा, इसमें एक important चीज़ है कि कनिष्क के टाइम पे we had some great scholars, ठीक है, विच ही पेट्रोनाइज. तो ये आपको हर स्कॉलर के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप पूरा याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये 3 तो याद कर ही लो,
ठीक है, सबसे पहले तो अश्वघोष. सो ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर हु रोट बुद्धचरिता एंड सौंदर्य नंदा विच वॉज अ संस्कृत काव्य. ठीक है, एंड देन वी हैव चरका हु इज़ द फादर ऑफ आयुर्वेद. एंड देन वी हैव वासुमित्रा. ठीक है, वासुमित्रा कौन थे? महाविभास, जिन्होंने महाविभास लिखी. इट वॉज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलोसफी. देन वी हैव नागार्जुन, जिन्होंने लिखी है प्रज्ञा पारमिता सूत्रा. ठीक है, एंड देन वी हैव माथुरा. माथुरा वॉज एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर, या इंटेलिजेंस कर लो इसको आप. ठीक है, इसको आप इंटेलिजेंस भी कर सकते हो. तो ही वॉज एन इंटेलिजेंस मिनिस्टर. एंड एजिलिसिस जो था हु वॉज अ ग्रीक इंजीनियर. एंड वी हैव सुश्रुत. सुश्रुत वॉज रिलेटेड टू सर्जरी. अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स माइट बी नोइंग दिस कि सुश्रुत कि अगर आप हिस्ट्री में अगर आप पढ़ो तो वो ही वॉज एसोसिएटेड विद सर्जरी. एंड वी हैव चरक ऑल्सो हु वॉज एसोसिएटेड ऑफ आयुर्वेद. तो हमारे पास सर्जरी के फादर और आयुर्वेद के फादर दोनों ही हमारे पास कनिष्क की कोर्ट में थे. सो आर हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद इज़ दिस ओल्ड. सर्जरी की भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है. ठीक है, वासुमित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. ही इज़ द वन हु रोट महाविभास. इट्स अ बुद्धिस्ट फिलोसफी. एंड वी हैव नागार्जुन. नागार्जुन ने लिखे प्रज्ञा पारमिता सूत्रा. ठीक है, एंड अश्वघोष अगेन इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी है. एंड ही ऑल्सो रोट सौंदर्य नंदा. इट्स अ संस्कृत काव्य. ओ वी हैव मिस्ड दिस पार्ट. बस इसका तो छोटा सा ही पार्ट है, जैसे कि स्प्रेड ऑफ महायान बुद्धिज्म वॉज देयर. ठीक है, गंधारा एंड मथुरा आर्ट, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. ट्रेड इंक्रीज. सिल्क रूट तो हमारे कंट्रोल में ही था इस टाइम पे. रेड पॉटरी टेक्निक्स ये लेकर आए. सेंट्रल एशियन अटायर्स भी आई हैं, जैसे कि टर्बन्स हो गए, ट्यूनिक्स हो गए, ये इंट्रोड्यूस हुआ. एंड लिटरेचर एंड साइंस तो हमने कनिष्क के टाइम पे यहाँ पे देख ही लिया है कि देखो लिटरेचर में अश्वघोष थे, साइंस में हमारे पास चरक एंड सुश्रुत तो है ही. तो इंजीनियर भी थे हमारे पास, ग्रीक इंजीनियर. तो वी हैव एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज स्कॉलर्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल कम टू द सतवानाज. तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉर्थ में क्या चल रहा था हमारा, मौर्याज आए, शुंगाज आए, कन्वाज आए, राइट. उसके बाद हमारा सतवानाज. तो अब सतवानाज आते हैं. साउथ में क्या थे, मौर्याज के बाद हमारे पास सीधा सतवानाज ही आते हैं. ठीक है, तो साउथ में, नॉर्थ में क्या चल रहा है, हमारे पास मौर्याज आए, उसके बाद शुंगाज आए, फिर कन्वाज आए. ठीक है, फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में तो ये सब चल ही रहा था, इंडो बैक्ट्रियन ग्रीक्स वाला. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन में इंडो बैक्ट्रियन, इंडोसाथियंस, पार्थियंस, कुशानाज, ये सब आए. पर डेक्कन में जो मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद ना सीधा का सीधा आपके पास सतवानाज आए हैं. सो साउथ में मौर्यास के बाद जस्ट रिमेंबर इट वाज द सतवानाज हु केम आफ्टर अ गैप ऑफ 100 years. ठीक है, हाउएवर नाउ लेट्स टॉक अबाउट what they were called. So they were called as Andhras of in the Puranas. It should be in, by the way. ठीक है, they were referred to as Andhras in the Puranas. जो हमारी पुरान्स होती हैं उनमें उनको आंध्रास बोला जाता था. However, the word Andhra is not mentioned in Satvana inscription. ठीक है, nor do the Puranas speak of the Satvanas, only refer to Andhras. Remember कि पुरानाज में हमारा आंध्रास लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा वर्ड आंध्रा है वो हमारी सतवाना इंस्क्रिप्शन में नहीं मैंशनड है. ठीक है, ओनली दे स्पीक ऑफ सतवानाज ओनली टू रेफर टू आंध्राज. ठीक है, जो हमारे पुरानाज हैं, पुरानाज डोंट स्पीक ऑफ सतवानाज, दे ओनली रेफर टू सतवानाज एज आंध्राज. सो अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शन हमारी कब आई है, 1st century BCE when they defeated the Kanvas. ठीक है, अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शन आई है 1st century BCE when they defeated the Kanvas and they claimed the Brahmin descent. ठीक है, ये भी ब्राह्मण्स थे, वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. एंड दे वर द वंस हु बेसिकली यूज द मैट्रोनिम्स. ठीक है, वो अपने माँ के नाम से जाने जाते थे. दे वर नोन फ्रॉम देम मोम्स नेम. ठीक है, हाउएवर जो हमारी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग होती थी या जो हमें थ्रोन मिलता था, थ्रोन हमें जनरली मिलता था फादर टू सन. ठीक है, वो फादर टू सन होता था. बट जो नेम होता था, नेम में हमारा जनरली मदर का नाम होता था. हम मदर का नाम लगाते थे अपने नाम से पहले. ठीक है, सो वी हैव हियर हु दे ऑल अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ दक्षिणापथापति विच मीन्स लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ एंड ऑल्सो नोन फॉर गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स. ठीक है, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए हैं, बुद्धिस्ट मंक्स को दिए हैं. एंड सम वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑल्सो. ठीक है, सम वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑल्सो.
अब हमारा फाउंडर कौन था भाई? सिमुक फाउंडर था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सतवानास ने डिफीट करने की कोशिश करी थी पहले, ठीक है। तो अब सिमुक जो था ही वॉज द फाउंडर एंड उनकी जो कैपिटल थी प्रतिष्ठान करके है, प्रतिष्ठान, ठीक है। तो प्रतिष्ठान को आप याद कर लेना। एंड ही बिल्ट अ लॉट ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स। फिर हमारे पास कान्हा आते हैं, तो बस ही इज़ द ब्रदर ऑफ सिमुक एंड जस्ट रिमेंबर दैट ही एक्सटेंडेड टिल नासिक। देन वन ऑफ आर इम्पॉर्टेंट वंस इज सतकर्णी वन, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पे हमारे पास सतकर्णी वन है। एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं वशिष्ठपुत्र पुलुमावी। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि सिमुक के बाद कान्हा आते हैं एंड देन वी हैव अनदर पर्सन सतकर्णी वन, ठीक है। तो सिमुक का जो बेटा होता है वो होता है सतकर्णी वन। ये कान्हा जो है इज़ द ब्रदर ऑफ सिमुक, बट कान्हा के बाद हमारे पास आते हैं सतकर्णी वन। अब सतकर्णी वन जो है वो नानेघाट इंस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। नानेघाट इंस्क्रिप्शन इनकी बेसिकली आपको बस ये याद रखना है, सतकर्णी वन की एक नानेघाट इंस्क्रिप्शन है विच वॉज कमिशन्ड बाय क्वीन नगानिका, ठीक है। एंड इट लिस्ट वैदिक सैक्रिफाइसेस परफॉर्म बाय हिम। तो क्वीन नगानिका कौन थी? वो सतकर्णी वन की वाइफ थी, ठीक है। इन्होंने ही ये नानेघाट इंस्क्रिप्शन बनवाई थी सतकर्णी वन के लिए। एंड इट लिस्ट द वैदिक सैक्रिफाइसेस परफॉर्म बाय हिम। एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू इशू पोर्ट्रेट टाइप कॉइन्स, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द फर्स्ट Indian king to issue portrait type coins, and only matrilineal name you can find here is गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी मतलब गौतमी का बेटा, ठीक है। गौतमीपुत्र गौतमी का बेटा, ठीक है। तो गौतमीपुत्र मीन्स दैट। एंड ये एक नासिक इंस्क्रिप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी की, जो उनकी मम्मी गौतमी बालश्री ने ही लिखी है, ठीक है। सो गौतमी वॉज द नेम ऑफ his mother and he was referred to as गौतमी पुत्र, गौतमी का बेटा या गौतमी का सन सतकर्णी, ओके। एंड सतकर्णी was the only protector of the Brahmins, ऐसा ये नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है। एंड ही इज़ द वन हु डिफीटेड द शाकास। मैंने आपको बताया था क्षत्रता लीनिएज पूरी ख़त्म कर दी थी एंड देन ही गोज़ ऑन टू डिफीट द कर्दमकाज ऑल्सो, बट वहाँ पे वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा रुद्र दमन होता है एंड रुद्र दमन जो है वो डिफीट कर देता है, डिफीट्स, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो रुद्र दमन डिफीट्स गौतमीपुत्र सतकर्णी। एंड जो रुद्र दमन की बेटी होती है, ठीक है, रुद्र दमन की जो बेटी होती है, शी इज़ द वन हु बेसिकली मैरीज गौतमीपुत्र सतकर्णी सन वशिष्ठपुत्र पुलमावी, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि रुद्र दमन इज़ द वन हु डिफीट्स हिम, ठीक है। सो ही डिफीटेड द शाकास की वो क्षत्रता लीनिएज जो दूसरी वाली होती है नाहपना वाली, ठीक है। एंड देन ही ऑल्सो हैड आंध्रा रीजन अंडर कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद वी हैव शाकास वर्सेस सतवानास ओवर 3 पोर्ट्स, बरोच, काल्यान एंड सुपारा, ठीक है। तो ये 3 पोर्ट्स का शाकास वर्सेस सतवानास है, ठीक है। एंड देन वी हैव वशिष्ठपुत्र पुलुमावी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही इज़ द वन हु मैरिड रुद्र दमन's डॉटर। एंड ही इज़ द वन हु ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारे क्षत्रपास थे, ठीक है, क्षत्रपास जो थे शाकास के जो लोग थे, दे वर एबल टू रिकवर सम टेरिटरीज ड्यूरिंग वशिष्ठपुत्र पुलुमावीज टाइम। देन वी हैव अनदर रूलर यज्ञश्री सतकर्णी, ही इज़ द वन हु रिकवर्ड कोंकण एंड मालवा फ्रॉम द शाकास। देखो यहाँ पे शाकास ने थोड़ी टेरिटरीज ली, फिर यज्ञश्री सतकर्णी आए, इन्होंने वापस से थोड़ी बहुत रिकवर करी फ्रॉम शाकास। एंड इनके उसमें वी हैव फाउंड मोटिव्स ऑफ शिप्स ऑन हिज कॉइन्स विच बेसिकली शोज दैट हाउ he might be a sailor, he was interested in trading, shipping, and he was very much interested because ships have been found on his coin. तो ये चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है। देन वी हैव एक इनसे एसोसिएटेड वैसा नहीं है, बट वी हैव हाला वॉज अ पोएट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड ही वॉज द वन हु रोट गथस्पति and it basically contains your 700 erotic verses in Prakrit, and he's also mentioned in लीलावती भास्कर, जो लीलावती बुक जो भास्कर ने लिखी है, ठीक है। तो जो हमारा हाला है, हाला के बारे में बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड सो वी कम टू एन एंड टू सतवानास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव 2 थिंग्स रिमेनिंग, इनिशिएटिव्स ऑफ द सतवानास एंड उस टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, एंड फाइनली पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ठीक है।
सो इनिशिएटिव्स क्या थे? दे स्टार्टेड पैडी कल्टिवेशन, ट्रांसप्लांटेशन, कॉटन स्टार्ट किया ग्रो करना, दे ग्रांटेड लैंड्स टू ब्राह्मण्स, अमरावती आर्ट थी, बुद्धिस्ट आर्ट थी, एंड यू नो लेड के कॉइन्स बनाते थे, पोटन कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। सतवाना के टाइम्स पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू सतवानाज वर ब्राह्मण्स, ठीक है। दे वर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। दे क्लेम्ड टू अपहोल्ड वर्ना सिस्टम एंड दे कॉल्ड देमसेल्व्स टू एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है। एंड वर्ना सिस्टम था, इसमें क्या था? किंग्स प्रमोटेड द फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम बट सोसाइटी वॉज नॉट फुली रिजिड, मैनी मिक्सड कास्ट एंड लोकल ग्रुप्स एग्जिस्टेड, ठीक है। तो एग्जाम में व्हाट यू हैव टू राइट, वर्ना सिस्टम एग्जिस्टेड इन थ्योरी बट वॉज फ्लेक्सिबल इन प्रैक्टिस इन द डेक्कन। अब रिलीजियस टॉलरेंस में क्या है कि येस दे वर रिलीजियसली टॉलरेंट, परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स बट ऑल्सो गेव लैंड ग्रांट्स टू द बुद्धिस्ट, ठीक है। वैदिक रिचुअल्स भी फॉलो करते थे, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण्स को ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मण्स प्लस बुद्धिस्ट दोनों को ही, ब्राह्मण्स प्लस बुद्धिस्ट दोनों को ही लैंड ग्रांट्स दिए हैं, ठीक है। एंड दे इवन सपोर्टेड द मोनास्ट्रीज अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। तो ये याद रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज शुंगास के टाइम पे इफ़ यू कैन रिकॉल वी टॉक्ड कि वहाँ पे तो शुंगा जाके हर किसी उसको बुद्धिज़्म को तो ख़त्म करना चाह रहा था, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी कि भाई वी ऑब्वियसली हैव फाउंड नेम्स लाइक गौतमीपुत्र, मदर्स नेम वाज यूज्ड विच शोज की मैट्रोनिमिक इन्फ्लुएंस था। वुमेन हैड मेड डोनेशंस टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो एंड दे हैड स्त्रीधन राइट, ठीक है। एंड दे हैड स्लाइटली बेटर स्टेटस दैन द लेटर पीरियड्स। गुप्ता पीरियड में तो इससे और ख़राब हो जाता है। एंड वी ऑल्सो हैव राइज ऑफ द मर्चेंट क्लास हियर, मर्चेंट्स आए, दे बिकेम इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप डोनेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है। इकोनॉमी में क्या था कि भाई वेरी सिंपल अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, रिंग वेल्स यूज़ हो रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास थे, आयरन आता था हमारा वरंगल से, गोल्ड हमारा कोलार से आता था, इकोनॉमिक बेस स्ट्रेंथन हुआ था, पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो कि मैंने बताया यहाँ पे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम राइस बोल भी कहते थे। तो दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी। एंड देन वी हैव क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, आंध्रा बिकेम फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है। वी हैव द कॉइनेज सिस्टम ऑल्सो, जो कि जनरली लेड कॉइन्स होते थे यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम द लेड कॉइन्स वी हैव कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स ऑल्सो, कॉन्ट्रास्ट विद द कुशानाज और गोल्ड कॉइन्स। तो कुशानाज के टाइम पे तो गोल्ड कॉइन्स थे जो कुशाना कर रहा था, ठीक है। और सतवानास के टाइम पे हमारे पास लेड कॉइन्स हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी यूनिक क्योंकि हर जगह लेड कॉइन्स नहीं मिलते हैं, लेकिन सतवानास के टाइम पे वी फाइंड लेड कॉइन्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। एंड ट्रेड में तो यू हैव टू रिमेंबर कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिया रोमन ट्रेड थी, ठीक है। वी हैव पोर्ट्स लाइक वेस्टर्न कोस्ट, कल्याण एंड भरूच, दे वर द वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। रिजल्ट ये था कि भाई गोल्ड इन्फ्लो हुआ इंडिया में, ठीक है, फेवरेबल बीओटी हुई, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ था यहाँ पे। एंड आर्किटेक्चर आई एम थिंकिंग कि ये जो सब है ना, चैत्याज विहार, दिस वॉज बेसिकली एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो ये सब चीज़ों को हम एक अलग से उसमें करेंगे, वेर आई teach you in detail about the Buddhist architecture, the Jain architecture, the temples of India, ठीक है। तो हम सब एक एक करके करेंगे। कल्चर एंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज वही प्राकृत थी, स्क्रिप्ट हमारी ब्रह्मी थी, ठीक है। लिटरेचर हमारी किसने, वो किंग हाला जो मैंने आपको बताया था, गतस्पति, ऐसे उनने लिखी थी। फाइनली पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप बस ये कर दो कि ठीक है, देयर वाज डिवाइन एंड धार्मिक किंगशिप, you know, king was seen as the upholder of dharma compared with राम, अर्जुन, भीम, ठीक है, डिवाइन क्वालिटीज़ होती थी। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किंगडम डिवाइड किस में था। सो किंगडम, सतवाहनास का किंगडम जो था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू आहाराज और राष्ट्रास। राष्ट्रास वो बेसिकली कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। राष्ट्रास कौन थे? डिस्ट्रिक्ट्स थे। ऑफिशियल्स कौन थे यहाँ पे? अमात्याज और महामात्राज। सो अमात्याज और महामात्राज आर द मिनिस्टर्स, ठीक है। सेनापति, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेनापति वॉज नोन एज द प्रोविंशियल गवर्नर। सेनापति आपका जनरली कौन होता है? सेनापति आपका जनरली होता है जो यू नो वॉर और इन सब में आर्मी को देखता है, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सेनापति प्रोविंशियल गवर्नर है।
And why is so? Because they wanted to keep tribal people under military rule, as they were not Brahmanized. So what these people were trying to do, they were trying to bring all the they were trying to Brahmanize the society. And they knew कि हमारा ये जो tribal people हैं, they are not going to get easily Brahmanized. तो इसलिए हम मिलिट्री रूल लगा देंगे उन पे. तो इनके ऊपर सेनापति, दैट इज़ वाई सेनापति वॉज द प्रोविंशियल गवर्नर. इट वॉज टू कीप द ट्राइबल पीपल अंडर द मिलिट्री रूल बिकॉज दे वर नॉट ब्राह्मनाइज्ड. तो एक फिर हमारा गौलमिका इज़ द विलेज हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट, 9 एलिफेंट्स एंड 9 चैरियट्स. तो 9 एलिफेंट्स और 9 चैरियट्स अगर आपने कहीं पे वर्ड देख लिया तो आप गौलमिका पे टिक करके आओगे. ठीक है. सो वी कैन सी दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन्फ्लुएंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ये आपके कुछ टर्म्स हैं, काटका कर लो, मिलिट्री कैंप्स कहते थे. स्कंधवारास कर लो, जो कि हमारे मिलिट्री सेटलमेंट्स थे. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन हैड मिलिट्री बेस. तो फ्यूडेटरी सिस्टम था. यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्यूडलिज्म आनी थोड़ी शुरू हो जाती है. ठीक है. 3 लेवल्स पे थे. एक हमारे पास राजा थे, राजा के बाद महाभोज एंड देन सेनापति. सो राजा वॉज द वन हु कुड इशू कॉइन्स, देन वी हैड महाभोज एंड देन वी हैड सेनापति. दीज वर अर्ली साइंस ऑफ फ्यूडलिज्म. रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? कैश और काइंड दोनों में मिलता था. एंड टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, उन लैंड ग्रांट्स पे टैक्स नहीं लगता था, वो हम ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट से लेते थे. ठीक है. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है कि ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट दोनों को ही साथ में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स मिल रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पहले या तो सिर्फ बुद्धिस्ट को मिलते थे या फिर सिर्फ ब्राह्मण्स को मिलते थे. कभी भी ऐसा नहीं होता कि साथ में सबको मिले. एक मैंने यहाँ कलिंगा डायनेस्टी के बारे में लिखा है बिकॉज इट इज़ ऑफ ड्यूरिंग समहाउ अराउंड दिस टाइम ओनली. तो खरवेलास की डायनेस्टी होती है 1st सेंचुरी BCE. इसमें बस ये आपको याद रखना है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन होती है. ठीक है. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में दे बेसिकली बिल्ड पैलेस ऑफ विक्ट्री, इंडिपेंडेंट रूलर्स rule after the Mauryas, and they were followers of Jainism. So that's it. This brings us to an end of this lesson 11, and we have discussed quite a few things here. So yes, it was a pretty long lecture, but yes, if you have any doubts, please let me know, and I hope I can help you in whatever you are preparing. So thank you guys. Next topic would be our Gupta period. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक अपना गुप्ता पीरियड होगा और वहाँ से हम उसको एंड कर देंगे. सो दिस सीरीज विल बी completed by the next class, and after this we'll be starting with other things. Okay, thank you.